students. Here, myself Kaushal Thakkar, I am your science teacher and presenting a second revision video of chapter 3 skeleton system, where we are going to discuss the most important topics in a little bit deep. Okay, we will see some points which we haven't discussed in the explanation of chapters and in the first revision video, and these important topics are actually very important in sight of your knowledge, because in this lockdown situation we all the teachers are trying to enhance your knowledge in spite of your marks. We don't know how you will score, but we know that we will try our best to give you the knowledge of this class in which you are pursuing in this year. So due to that, I am trying to make the videos more knowledgeable, more important points I am adding. Okay, so this is totally based upon the chapter 3, and in chapter 3 I had excluded the muscular system. I had only taken the skeleton system and some important topics and some, I think in 4 points, fun facts. There are 4 points of fun facts also. So happy monsoon to all of you. Okay, and let's start our first slide. Students, the most important part of a skeleton is skull, and we are going to discuss about skull in this slide, and it is really looking very interesting. I had taken a picture where you can see the parts of the skull very clearly, because this is the real picture of a skull, not an animated, not a cartoonist had drawn it. It is a real image of skull. Students, you all know that the skull is the bony structure of the head. Okay, skull makes our head and it is made up of bone. That's why here it is explained that skull is the bony structure. It surrounds the brain, it protects the brain and give our head a specific shape. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमें हमारे शरीर में जो सबसे ऊपर जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा माथा होता है, जिसे हम हेड कहते हैं, उससे वो स्कल जो होता है हमारे पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे हेड को एक पर्टिकुलर शेप देता है. और दूसरा पॉइंट भी हमारे करिकुलम बुक में है, हमारे टेक्स्ट बुक में है कि स्कल जो है वो टोटल 22 बोन से मिल करके बनते हैं. Only the skull. And now the round part of the skull, the round part of the skull holds the brain. ये जो ऊपर में आपको आँखों के ऊपर, कानों के ऊपर जो सेमी स्फेरिकल शेप का जो राउंड पार्ट दिखाई देता है स्टूडेंट स्कल का, यही ब्रेन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके अपने अंदर रखता है और इसी को हम क्रैनियम बोलते हैं. इट इज कॉल्ड क्रैनियम स्टूडेंट्स. द अपर सेमी सर्कुलर शेप ऑफ द स्कल इज नोन एज क्रैनियम बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स एंड कवर्स द ब्रेन ऑफ द बॉडी. क्रैनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स. स्टूडेंट्स, जो ऊपर का जो क्रैनियम है वो 8 फ्लैट बोन्स से मिलकर के बना हुआ है. Students, if we are going to discuss about the face including lower jaw consists of 14 bones. अगर पूरा फेस के बारे में हम बात करेंगे, हम स्कल के क्रैनियम को छोड़ देंगे, पूरे फेस के बारे में बात करेंगे, तो पूरा फेस लोअर जॉ के साथ 14 बोन्स से बना होता है, 14 हड्डियों. There are also 3 tiny bones in each ear. कान के अंदर में स्टूडेंट्स, in the ear, नॉट द आउटर ईयर, जो आपको दिखाई देता है वो नहीं, अंदर एकदम कान के अंदर में स्टूडेंट्स 3 बोन्स होते हैं एवरी ईयर में, और वो तीनों काफ़ी छोटे बोन होते हैं. और वो तीनों बोन में से ही एक बोन का नाम है स्टेप्स, जो पूरी बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है.
उसके बारे में भी मैंने आगे डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, द लास्ट 2 points of this explanation is not explained in your chapter, but I had added here to enhance your knowledge this year. ये साल ज्ञान का है, मार्क्स का नहीं है। लेकिन ज्ञान के साथ अगर हमारी परीक्षा किसी भी क्षण हो तो हम अपने नॉलेज के साथ में अच्छे मार्क्स ला सके, ऐसी तैयारी रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू वर्क हार्ड इन होम्स। घरों में मेहनत जारी रखना है स्टूडेंट्स। द सेकेंड slide, which is about the rib cage. The rib cage is also an important part of our skeleton. Rib cage, which we can say chest, total 25 bones are consisting here. 25 हड्डियों से मिलकर के हमारा रिब केज बनता है, और उन 25 हड्डियों में एक ब्रीस्ट बोन बीचों बीच, स्टूडेंट जो आपको आगे की तरफ छोटा सा बोन दिखाई दे रहा होगा जिसमें सारे रिब्स जुड़े हुए हैं, पीछे एक लंबा बोन है, वो बैक बोन है, लेकिन आगे जो छोटा बोन है वो ब्रीस्ट बोन है स्टूडेंट्स, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। इसके बारे में भी मैंने चैप्टर्स में बात किया था और आज फिर इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। 12 सेट्स ऑफ रिब्स हैं हमारे पास। 12 सेट्स मीन्स, सेट का मीन्स होता है दो पेयर बोल सकते हैं हम। 12 पेयर्स, 12 सेट्स मीन्स टोटल 24 रिब्स हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारे पास हैं, जिसमें से स्टूडेंट 10 पेयर जो होते हैं ना, वो स्टर्नम से आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं, पीछे की तरफ बैकबोन से अटैच्ड होते हैं। टोटल 10 रिब्स, 10 पेयर ऑफ रिब्स। बट जो नीचे के 2 रिब्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये नीचे के 2 रिब्स स्टूडेंट, 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है, बिकॉज ये आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होते, सिर्फ पीछे की तरफ बैकबोन से अटैच्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत लोगों के 12 पेयर्स नहीं होते, 13 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। ये बात मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ लिखता नहीं और वीडियो में बताता हूँ, फिर बाद में मैं जब पूछूंगा PDF में तो पता चल जाएगा कि किसने किसने वीडियो देखा है, सुना है। 12 पेयर ऑफ रिब्स की जगह बहुत लोगों के अंदर 13 पेयर ऑफ रिब्स भी होते हैं। और ये जो 13th पेयर ऑफ रिब्स होता है, इसे गोरिल्ला रिब्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है? गोरिल्ला रिब्स। ये आपके टेक्स्ट बुक के फन फैक्ट्स में दिया हुआ होगा। These 24 bones form a protective cage which helps in protecting an internal organs like heart and lungs. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्कल का, क्रेनियम का बात किया था, स्कल का जो अपर सेमी सर्कुलर जो शेप था बोन का, जो 8 बोन से बना था स्टूडेंट्स, पिछले ही स्लाइड में हमने बात किया। क्रेनियम जो ब्रेन प्रोटेक्ट करता था, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता था। यहाँ पर जो रिब केज बन रहा स्टूडेंट्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स से, टोटल 24 राउंडेड बोन्स से जो हमारा रिब केज बन रहा है स्टूडेंट्स, वो लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी तक तो हमारा 2 इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक रहा है उस पर हमने चर्चा पूरी कर ली है। और नाउ द थर्ड एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच आई हैड डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज बैकबोन। मैंने स्पेशली उन्हीं चीज़ों को लिया है स्केलेटन के पार्ट में जो चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई स्केलेटन में। मैंने अभी इस चैप्टर का सिर्फ आधा भाग लिया है, मैंने मस्कुलर सिस्टम को अभी साइड रखा है। मैंने सिर्फ स्केलेटन के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में थोड़ी ज़्यादा चर्चा की है इस वीडियो में। स्टूडेंट, द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन। पूरा का पूरा जो स्कल होता है स्टूडेंट्स हमारा, वो बैकबोन से ही अटैच्ड होता है। और बैकबोन एक लंबा बोनी स्ट्रक्चर है जो पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। पूरे बॉडी के स्ट्रेट होने का मेन कारण बैकबोन ही है। बैकबोन को वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइन भी कहा जाता है। The human spinal cord is made up of 33 bones are called vertebra. वर्टेब्रल कॉलम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 33 स्मॉल बोन से जुड़कर बना होता है
और ये जो छोटे छोटे बोन से मिलकर बनते हैं, उस छोटे बोन को वर्टेब्रा कहा जाता है, वर्टेब्रा। द बैकबोन हैज़ मूवेबल जॉइंट एंड दिस मेक्स अप बेंड्स एंड ट्विस्ट इजीली। हमारा बैकबोन बहुत सारे बोन से जुड़ करके बहुत सारे जॉइंट से बना है, इसलिए हम आराम से आगे पीछे साइड बाय साइड वो झुक सकते हैं, हम अपने कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं, अपनी पीठ के हिसाब से हम बहुत फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर सकते हैं अपने बॉडी का। वर्टेब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपने सुना होगा, द बंडल ऑफ नर्व्स। और अगर आपको याद नहीं है तो आने वाले वीडियोस में मैं नर्वस सिस्टम के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो भी समाप्त हुआ, और इसके साथ जो मैंने चैप्टर रिलेटेड टॉपिक्स लिए थे वो समाप्त हो गए। अब टोटल 4 पॉइंट्स के फन फैक्ट्स बाकी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं हो और कुछ लोग पहले से जानते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फन फैक्ट्स अबाउट अवर स्केलेटन। द फर्स्ट फन फैक्ट, क्या न्यू बेबी हैज़ 300 बोन्स। एक जो नया बच्चा होता है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर छोटे बच्चे की तस्वीर भी दी है उसके स्केलेटन की, उसमें 300 बोन्स होते हैं। और जैसे जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा होता है, कुछ जगह के उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और ये हड्डियाँ कम हो करके एक एडल्ट का बोन कितना होता है स्टूडेंट्स? 206। एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में 206 मतलब 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उनमें 300 या 350 300 to 350 बोन्स होते हैं, और धीरे धीरे करके वो फ्यूज हो करके 206 बोन्स में बन जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो पहला फन फैक्ट पूरा। दूसरा फन फैक्ट स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, पूरे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, लेकिन ये दूसरा फन फैक्ट ऐसा बोलता है कि हमारे हैंड्स और लेग्स में सिर्फ 54 और 52 मीन्स 106 हड्डियां हैं। मतलब मोर देन हाफ ऑफ द बोन्स इन द टोटल बोन्स ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट इन आवर हैंड्स एंड लेग्स ओनली। हमारे दोनों हाथों में 54 हड्डियां हैं और दोनों पैरों में 52 हड्डियां। टोटल 106 बोन्स आर ओनली कंसिस्टिंग आवर लेग्स एंड हैंड्स। तो ये है ना फन फैक्ट कि टोटल 206 बट ओनली इन लेग्स एंड हैंड्स देयर आर 106 बोन्स। दिस इज द फन फैक्ट। मैंने आपको दिखाया है फोटो। फर्स्ट फोटो जो है हमारे हैंड स्केलेटन का है, दूसरा फोटो जो है वो हमारे लेग स्केलेटन का है, और ये दोनों स्केलेटन में टोटल 106 हड्डियां पाई जाती है। अगर हम दोनों हाथ और दोनों पाँव की हड्डियों को जोड़े तो टोटल बोन्स वेयर 106 and the total bones of the whole skeleton of a human body is 206. So it is a fun fact. Okay. So the third fact is, had came in our syllabus, the thigh bone. Thigh bone, which is called femur, is the longest and the strongest in our body. हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स जो थाई बोन है, हमारे पाँव कमर के नीचे से लेकर के नी तक का जो लंबा बोन है वो सबसे लंबा है पूरे बॉडी में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। और उसकी फ़ोटो जस्ट मैंने टेक्स्ट के बगल में दी है, कितना लंबा बोन है ये। उसके बाद स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स। मैंने अभी बात किया था कि मैंने कहा था, जब मैं स्कल के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि 3 हड्डियाँ एक कान के अंदर होती है। देयर आर 3 स्मॉल बोन्स कंसिस्टिंग इन अ ईयर, और उसमें से ही सबसे छोटा बोन का नाम स्टेप्स होता है, वही यहाँ पर बात की गई है। द स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स विच इज प्रेजेंट इन आवर ईयर्स। स्टूडेंट, स्टेप्स का फोटो देखिए, पर्पल, लाइट पर्पल बैकग्राउंड में ये स्टेप्स का फोटो है। ये हड्डी जो है ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है, इसको स्टेप्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। और उसके नीचे स्टूडेंट्स मैंडिबल है।
मैंडिबल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन। स्टूडेंट्स ये पॉइंट नहीं दिया हुआ आपके बुक में, ये मैंडिबल वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ है। मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी हो, यू एनहेंस योर नॉलेज दैट मैंडिबल इज द हार्डेस्ट बोन विच फॉर्म द लोअर जॉ। हमारा जो लोअर जॉ है, जो मूव करता है स्कल में, उस देखिए मैंने लोअर जॉ का फोटो दिया हुआ है, इसको मैंडिबल कहा जाता है स्टूडेंट्स, और ये सबसे हार्डेस्ट बोन होता है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। सो यू कैन से दैट द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज फीमर, the smallest bone is stapes, and the hardest bone is mandible. The most important knowledge in this slide. And the last slide of this video is a very cute fun fact, because this fun fact is related to giraffe in comparison with human skeleton. The fun fact is about humans and giraffe have 7 bones in their neck. मनुष्य के गर्दन में 7 हड्डियां, एक जिराफ के गर्दन में भी 7 हड्डियां, लेकिन मनुष्य के गर्दन की लेंथ और जिराफ के गर्दन की लेंथ में बड़ा अंतर। जिराफ का जो गला होता है स्टूडेंट, जो नेक होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, ह्यूमन का नेक उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्यों ऐसा होता है? दोनों में 7 हड्डियां ही हैं, बट द डिफरेंस इज दैट कि जिराफ्स नेक बोन्स आर मच लॉन्गर देन ह्यूमंस। ह्यूमंस की 7 हड्डियों से जिराफ की जो 7 हड्डियां हैं उनके गले में, वो काफ़ी लंबी है हमसे, हमारी हड्डियां छोटी छोटी। दैट्स वाई द लेंथ ऑफ आवर नेक इज वेरी लेस इन कंपैरिजन विद द नेक ऑफ जिराफ, एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फन फैक्ट अबाउट स्केलेटन। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ बाय बाय विनयंस। हमारे जो 2 प्यारे दोस्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भी चाहते हैं कि अब हम अगले वीडियो में अगले हफ्ते मिले। तब तक के लिए मैं ये सारी चीज़ें मैंने जो पढ़ाई है, इस पर मैं आपको MCQs और मैच द कॉलम्स भेजूँगा, ताकि आप थोड़ा सा इस नॉलेज के प्रति और फ्रेंडली हो जाएं, वो एक्सरसाइजेस को बनाएं। तब तक के लिए ये सारे देखें, हमारे दोनों फ्रेंड्स हमें बाय कर रहे हैं, हम भी इनको बाय करते हुए स्केलेटन के टॉपिक को, रिवीजन को ख़त्म करेंगे, और अच्छी बातें आज हमने सीखी। तो बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।